लास्ट क्लास में पढ़ा था लॉज ऑफ रोटेशनल मोशन. नाउ वी आर गोइंग टू डू इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म rotational motion. Uniform rotational motion means constant angular acceleration. The angular acceleration is constant. Right? जो angular acceleration है वो constant है. ठीक है. So these are the equations. Omega is equal to omega naught plus alpha t. Right? Omega is what? Velocity, angular velocity at time t. Omega naught is what? Initial angular velocity. Okay. So what we have, alpha is equal to d omega by dt. So d omega is equal to alpha dt. Right? अब इसको इंटीग्रेट कर दो. इसको इंटीग्रेट कर दो तो दैट इज d omega omega naught to omega is equal to alpha dt 0 to t. So d omega का इंटीग्रेशन ओमेगा, that is omega naught to omega, dt का इंटीग्रेशन t 0 to t. So when we place the limits place करेंगे, then what we will get? Omega minus omega naught is equal to alpha t minus 0. So omega is equal to omega naught plus alpha t. कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो अभी थोड़ी देर में पूछ लेना, मैं कर दूंगा ठीक. अभी बस एक बार नोट कर लो, अगर कुछ नहीं भी समझ में कुछ भी प्रॉब्लम है तो. द सेकेंड इक्वेशन is theta is equal to omega naught plus half alpha t square. We know omega is equal to d theta by dt. So d theta is equal to omega dt, but omega is omega naught plus alpha t dt. So on integrating d theta का इंटीग्रेशन 0 to theta, this is omega naught dt 0 to t plus alpha t dt 0 to t. इसको इंटीग्रेट किया, d theta का इंटीग्रेशन थीटा 0 to theta naught omega naught dt का इंटीग्रेशन t 0 to t प्लस अल्फा t dt का इंटीग्रेशन t square by 2 0 to t. So this is theta minus 0 is equal to omega naught t minus 0 plus alpha by 2 t square minus 0 square, and we get theta is equal to omega naught t plus half alpha t square. Right, now equation third. Third equation is omega square minus omega naught square is equal to 2 alpha theta. Correct? We know that alpha is equal to d omega by dt. इसको हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं बाय डी थीटा. हाँ, ये बिल्कुल जो लीनियर मोशन है उसका सिमिलर है. अब इसमें इन दोनों को हम अलग से कंबाइन करते हैं.
तो ये हो गया अल्फा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। बट डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा। डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा. So what we get finally, omega d omega is equal to alpha d theta. अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ओमेगा डी ओमेगा, ओमेगा नॉट टू ओमेगा, अल्फा तो कांस्टेंट है, डी थीटा 0 to थीटा. So this is omega d omega का इंटीग्रेशन ओमेगा स्क्वायर बाई 2 अल्फा डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा. लिमिट्स प्लेस किया तो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा थीटा माइनस 0. एंड फाइनली वी गेट omega square minus omega naught square is equal to 2 alpha theta. What is in the rotation? अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें, रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी. तो कोई भी एक स्फेरिकल बॉडी लेते हैं, let's say it is rotating with some angular velocity omega and some angular acceleration alpha, right? Then every particle of body will be moving in a circle. This is circle of radius r1, then another particle in a circle of radius r2, right? If I say these are the two particles, the velocity is tangent to the circle. कोई भी डायरेक्शन, ये मैं आर्बिट्रेरी ऐसा कुछ नहीं है कि इधर जा रहा होगा या इधर जा रहा होगा, कोई भी पार्टिकल कहीं पे भी ले लो तो then every particle is in a circle and it will have some linear velocity v, right? What will be the velocity? देखो omega and alpha same for all particles. इनको हम बोलते हैं एंगुलर वेरिएबल्स. दीज विल बी सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स. कैसे? लाइक सपोज करो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको घुमाता हूं ऐसे और ये पूरा सर्कल करके वापस आ गया, तो हर एक पार्टिकल ने एक सर्कल पूरा किया सेम टाइम में, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया, टाइम भी सेम हो गया, तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम हो गई. तो हर एक पार्टिकल के लिए ओमेगा भी सेम हो गया और अल्फा भी सेम हो गया, राइट? रही बात लीनियर मोशन में. लीनियर मोशन के लिए देखो इस पार्टिकल ने बड़ा सर्कल किया, इस पार्टिकल ने छोटा सर्कल किया, टाइम तो सेम है दोनों के लिए, दैट इज एक सर्कल का टाइम जो कि टाइम पीरियड के बराबर है. तो टाइम सेम है तो दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो गई. किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी? v1 ज़्यादा होगी क्योंकि उसको बड़ा सर्कल करना है, v2 कम होगी क्योंकि इसको छोटा सर्कल करना है. सो व्हाट आई कैन से इज दैट v1 इज ग्रेटर देन v2, राइट? बट v इज इक्वल टू r ओमेगा and a is equal to r alpha. जो लीनियर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की है वो अलग अलग होगी. दैट विल डिपेंड श्योरली ऑन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, यानी वो कितने डिस्टेंस पे है. जितना वो सेंटर से दूर जाता रहेगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, जितना सेंटर के क्लोजर होगा उतनी वेलोसिटी कम होगी, राइट? सेम ऐसे ही लीनियर एक्सेलरेशन. लीनियर एक्सेलरेशन में दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ रेडियस, राइट? तो यानी जो पार्टिकल की पोजीशन है एक्सिस से, राइट? ये बात समझ में आई? सो हम इसको कंक्लूड करते हैं
for all particles, angular variables are same, while linear variables depend on position of particle from axis of rotation, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल कितना दूर है या कितना पास है, इस फैक्टर पे डिपेंड करता है. इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है बच्चों? हो गया? Now, let's calculate kinetic energy of rotation. ये मैं डिस्क्रिप्शन लिख नहीं रहा हूं, ये कोई एक रिजिड बॉडी है. रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं हम? जो कि जिसके शेप एंड साइज फिक्स रहता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी. इस रिजिड बॉडी में कुछ पार्टिकल्स हैं, M1, M2, M3, Mn. M1, M2, M3, those are at distance R1, R2, R3, R4 from Rn, Rn from axis of rotation, and this is rotating with angular velocity omega. That is the axis of rotation. When body is rotating, then all particles are in circular motion. Like एक मैं बना देता हूँ, then this particle will be in circular motion like this. ठीक है? So इन सब particles की अपनी velocities होंगी, that is v1, v2, v3 and vn, right? So now kinetic energy of body, kinetic energy of body equals kinetic energy equals sum of kinetic energy of all particles, sum of kinetic energy of all particles. जितने भी पार्टिकल्स है A to Z बॉडी में, सबकी काइनेटिक एनर्जी का सम कर दो, दैट विल बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, राइट? सो दिस इज K इज इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वायर हाफ M2 V2 स्क्वायर प्लस 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 हाफ Mn Vn स्क्वायर, राइट? Now, but V is equal to R omega, and omega is same for all, but V is different and R is different. So how we can take K is equal to half M1 R1 omega square plus half M2 R2 omega square plus half Mn Rn omega square.
Now in all, half and omega square is common. In all, half and omega square common. So what is left? m1 r1 square plus m2 r2 square plus mn rn square. You know what is mr square? mr square is moment of inertia, but I is equal to mr square. So K is equal to half omega square I1 plus I2 plus I3 plus In, or sum of moment of inertia of all particle is what? Sum of moment of inertia of all particle is moment of inertia of body. Sum of moment of inertia of all particle is moment of inertia of body, right? And that's very similar to half mv square. This is half I omega square, right? Just similar to half mv square, right? Now बिल्कुल सेम एक और आर्टिकल, दैट इज जब मैं एंगुलर मोमेंटम पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने नोट लिख दिया था. नाउ वी हैव टू डिराइव दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी. राइट. फॉर द पॉइंट ऑब्जेक्ट एंगुलर मोमेंटम इज mvr. फॉर द पॉइंट ऑब्जेक्ट एंगुलर मोमेंटम mvr हो जाता है, राइट. अगर एक रिजिड बॉडी है तो ये सेम वही फिगर है जो अभी मैंने काइनेटिक एनर्जी के लिए बनाई थी. सो आप लोग वहीं से छाप लो. सेम फिगर है, कोई डिफरेंस नहीं है. नहीं. एंड बिल्कुल सेम जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी का किया ऐसे इसका करेंगे. एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इक्वल्स सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल्स, राइट. सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इक्वल्स सम ऑफ एंगुलर momentum of all particles, यानी L is equal to m1 v1 r1 plus m2 v2 r2 plus mn vn rn. इसमें मेरे समझाने के लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल कॉपी है, तो फटाफट छापते जाओ बस. राइट. एंड mr स्क्वायर क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल्स I1 प्लस I2 प्लस In, और सारे पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला दो. सो दैट बिकम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी. L इज इक्वल टू I ओमेगा. हो गया बच्चों? कुछ पूछना है किसी को? नहीं. conservation
of angular momentum. Conservation of angular momentum, right? From tau is equal to dl by dt. If tau is equal to 0, tau is what? Torque. If tau is equal to 0, then dl is equal to 0 or L is equal to constant, right? So how we describe that? In absence of external torque, और अगर किसी सिस्टम से एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो हम इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. In absence of external torque, यानी which system? Isolated system. The angular momentum of system remain same, although angular momentum of individual body of system may change. यानी पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ऑल्दो इंडिविजुअल बॉडीज का एंगुलर मोमेंटम चेंज हो सकता है, राइट? सो और ये कितना होता है? L कितना होता है? I ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? हो गया बच्चों? अब इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूं, ओके? लाइक डांसर, legs spread, hand spread, then legs shrinked, hand shrinked. ऐसे कौन सा डांस है? वो घूमर डांस, ठीक है? ऐसे घूम रहे हैं, राइट? तो जैसे ही हाथ खोला तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया. अब आई ओमेगा कांस्टेंट है, सो देन व्हाट विल हैपन? जैसे ही हाथ खोला तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, तो ओमेगा एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी, यानी स्लो स्पीड से रोटेट करेंगे. और जैसे ही हाथ श्रिंक किए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया. देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाता है जब मास एक्सिस से दूर हो जाता है. मैंने ऐसे हाथ ऐसे मास तो जितना मेरा है वो रहेगा, जब मैंने हाथ ऐसे कर दिए तो मास दूर चला गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो स्पीड कम हो गई. तो इसलिए जब वो घूम घूम के रुकना होता है
तो कैसे रुकते हैं, ऐसे स्प्रेड कर देते हैं लेग्स को और हैंड को, राइट। और जब स्पीड बढ़ानी होती है तो क्या करते हैं, श्रिंक कर देते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट ओमेगा 1 ओमेगा 2, विच स्पीड इज मोर, ठीक है। जब श्रिंक्ड है तो स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, जो पार्क में होता है, ऐसे घूमता है, मैरी गो राउंड, राइट। हाँ, सभी में होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, सब जगह अप्लाई होता है। मैरी गो राउंड कैसे होता है, ये एक डिस्क है, एक डिस्क टाइप होती है, सेंटर से फिक्स होती है। यहाँ पर हम एक बच्चे को खड़ा करके घुमा दिया, या बच्चा भाग के आके उस पर चढ़ गया तो वो घूमना शुरू कर देते हैं, राइट। क्या हुआ, जब बच्चा भागता हुआ आता है, इसके ऊपर चढ़ता है, तो बच्चे का कुछ एंगुलर मोमेंटम है, वो पूरे सिस्टम को मिल जाता है और ये घूमना शुरू कर दिया, राइट। नाउ दिस इज द केस, बट इफ द चाइल्ड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड सेंटर, तो क्या होगा, मूव टूवर्ड्स सेंटर, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, क्योंकि पहले चाइल्ड का मास यहाँ पे इतने डिस्टेंस पे था, व्हेन इट इज कमिंग क्लोजर टू एक्सिस तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने लगा, तो ओमेगा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी, तो स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी, राइट। डाइवर, ये देखो ऐसे, ये वो होता है इनका जंपिंग वाला, और यहाँ इनको कूदना होता है, तो ये ऐसे जाके ऐसे आते हैं, है ना, डाइविंग ऐसे होती है ना, राइट। तो अभी ये आदमी यहाँ पे ऐसे होगा, इस तरह से गया, ठीक है। Then what happened? It starts shrinking down, like ये ऐसे होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर ये और ज़्यादा इस गोल गोल घूम जाएगा, फिर ये पूरा ऐसे हो जाएगा, एंड देन इट स्टार्ट रीओपनिंग दिस वे, ठीक है। इट्स लाइक दैट कि पूरा ऐसे गोल टाइप से हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, जैसे जैसे वो श्रिंक होता जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने से स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ जाएगी, सो देन द डाइवर कैन टेक मोर राउंड्स इन एयर, ओके। जितना वो अपने आप को श्रिंक कर पाएगा उतने ज़्यादा राउंड ले पाएगा, नहीं। एक बिल्ली भी जंप करती है तो ऐसे ही जंप करती है, बिल्ली भी जब जंप करती है तो इसी तरह से अपने आप को स्क्वीज कर लेती है। कभी जब कैट को कभी जंप करते हुए देखना तो यू विल फाइंड, जब वो रास्ते में होती है तो ऐसे श्रिंक कर लेती है अपने आप को, ओके। सो जितना वो अपने आप को स्क्वीज करेगा उतने ज़्यादा राउंड्स ले पाएगा हवा में, राइट। ये समझ में आया?